Hyderabad Central University. Okay. Yeah, yeah. Indian Constitution is our holy book. We should study it every day. Actually, Okay. we all are know. We are telling our constitution is great. Baba Saheb Ambedkar given our constitution like that, but people are not seriousness and awareness. So our Rashtriya Bauddha Mahasabha given good opportunity and platform. We have to learn. We have to aware Indian constitution about, because now Indian constitution is very dangerous situation, dangerous zone now, because RSS and these Manuvadi forces, especially Bharatiya Janata Party (BJP), nowadays they are planning to remove Indian constitution. They are planning to implementation Manusmriti. So we have to aware, we have to read at least every day one article. At least we have to motivate our neighbor, our family member, our sisters, brothers, especially our nearest people also. Otherwise, especially who are working for humanity, human rights, samatha, those who are interested to working for samatha, they're suffering very coming few days. So we are not emotionally, we all are know, we all are Buddhist. So we are maintain samatha bhavana and we are aware. Then we have to protect our Indian constitution. So few words I have to speak now because time is very precious. I also very seriously learn Hindi. I definitely learn. Next time I try to my level best. Next our speaker, our next speaker, I'm going to submit our next speaker Dimanji. I think Dimanji name. So I request next speaker will join and talk about today our constitution topic. Thank you. Namo Buddhaya Bhavatu Sabha Mangalam. Okay, thank you. Sadhu. Okay, thank you, respected Nageshan Bodhi. And Ji. I want to say you that RBM is working for life, liberty, dignity, and equality. We are working for Buddhism. So you are welcome and work with us. It is a constitutional webinar and we are providing legal language. Yes, sir. Dr. Ambedkar said, Okay. educate. It means we have to educate, we have to provide legal education. So Rashtriya Bauddha Mahasabha is providing legal education, especially constitutions of India. Thank you. बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब, आपने बहुत अच्छे से चर्चा की। जी सर, बोलिए। बस, थैंक यू। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रतिपाल साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अध्यक्ष जी उद्बोधन रखें। माननीय प्रतिपाल साहब। माइक पर जी। एक बार फिर से करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, समय समय पर जन्मे महापुरुषों संतों को नमन करते हुए, हमारे आज के कार्यक्रम की खास विशेष जो प्रोग्राम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या हमारे प्रोफेसर साहब आरसी धीमान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य बादल सिंह बौद्ध जी और हमारे जो
जिन्होंने आज हमारा प्रोग्राम का संचालन करना था, नागेशा बोध जी और सभी संयोजक, सह संयोजक और उपासिकाओं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हमें आज प्रोफेसर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है और विधायक पालिका है, उनकी जो पावर्स या उनकी व्यवस्था के बारे में बताया, इसके साथ साथ ही उन्होंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी जैसे कि पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, संसदीय प्रणाली, फेडरल रिपब्लिक, संघीय प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, और उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने जो कहा कि वो विस्तार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में आगे जो कमिंग मंडे है उसमें अपने उसको व्याख्या करेंगे। साथियों, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायक पालिका की जो इनके जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बाबा साहब ने तफसील से लिखा है, व्याख्या की है, लेकिन क्या ये आज हो रहा है? नहीं। क्यों? आज हम देखते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है और जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है, क्या वो इन सभी को इसका पालन कर रहे हैं? अब जैसे कि हम देखते हैं, तो देखा है पीछे कि जो स्टेट में जब चुनाव हुए, जैसे गोवा में चुनाव हुए, मणिपुर, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तो वहां पर जो सेंटर की गवर्नमेंट, उन्होंने पावर में ना होते हुए भी स्टेट की गवर्नमेंट्स को खरीद कर, तोड़कर, डराकर, धमकाकर अपना उसमें राज्य कायम किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त है, वो जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो इस वक्त सेंटर में सरकार चला रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा साथियों हमें उनसे है। अब उससे बचने के लिए हमें करना क्या है कि जैसे कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जो कार्यक्रम चला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या हर मंडे को, सोमवार को जो होती है, इसको हर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि समझ सकें कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब ने व्यवस्था की है, चाहे वो कार्यपालिका की पावर्स के बारे में व्यवस्था की है, चाहे वो न्यायपालिका की, चाहे वो विधायक, क्या उसका पालन सही तरीके से हो पा रहा है? नहीं। इसलिए हर एक शख्स को, हर एक भारतीय को ये समझने की जरूरत है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो बारे में पूरा ज्ञान लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जैसे जिस तरह से हमें शिक्षा की जरूरत है, उसी तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर समझने की जरूरत है कि उसमें हमें क्या क्या पावर्स दी गई हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं, किसकी क्या पावर है, किसका ने क्या काम करना है, किसने किस क्षेत्र में काम करना है। और अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात रखता हूँ कि इसमें बहुत खूबसूरत बाबा साहब ने एक रखी व्यवस्था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संसदीय प्रणाली और अगर सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई उत्पन्न हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए, उसका निदान करने के लिए जो है हमारे पास न्यायपालिका, तो उसको उस विषय को समाप्त करने के लिए हम न्यायपालिका का जो है साथ दे सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही विस्तार से जो है संविधान में जो है बाबा हमें इसमें बताया है। सो इसलिए हम सभी से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काफी समय से, पिछले समय से हर मंडे को जो है एक संविधान पर चर्चा करते हैं, और उसमें हर रोज, हर मंडे को जो है हम बताते हैं कि हमें
संविधान की कम से कम संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा अब फर्ज बन जाता है कि हर एक घर में संविधान की बुक, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, लेके आनी है, लेकर आकर उसका अध्ययन करना है और उस अध्ययन करने के साथ साथ जो हम कार्यक्रम वेबिनार चला रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसके साथ साथ हमें कुछ हमारे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसका निदान करने के लिए हमें जो वेबिनार हम लगा रहे हैं उसमें क्वेश्चन जरूर पुट करें, ताकि हमारा जो हमारे दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन आ जाता है, जो कोई भ्रम पैदा हो जाता है, तो उसका निदान हमारे प्रोफेसर साहब हमें बड़े विस्तार से करके बताते हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम वेबिनार लगाएं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो ग्रंथ है जब उसको हम पढ़ें, तभी उसमें हम आगे जो हमारी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं करना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग, जो जैसा कि हमें देखा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में वहां विस्तार से हमें बताया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको शायद पता ही होगा जो 10% जो गरीब घर के अगड़ी जाति के समाज के लिए जो रिजर्वेशन रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन सरकार ने इसको 10 दिन में ही पास करवा कर, पार्लियामेंट से पास करवा कर इसको कानून बनाकर और इसको रातों रात प्रेसिडेंट से साइन करवा कर और इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। लेकिन जो हम पिछले 73 साल से जो हम रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन जो हमें दी है बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, वो तो अभी पूरी तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं की। सो इस सब चीजों से बचने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम जो है कम से कम एक तैयार कर लें, एक निश्चय कर लें कि हमें आरबीएम के माध्यम से नए नए लोगों को जोड़ना है, नए नए लोगों को जोड़कर उनको वेबिनार के माध्यम से उनको विचार उनको सुनवाने हैं और घर घर जाकर आरबीएम के लिए जो आरबीएम ने बीड़ा उठाया है खुद में भारत बनाने का, उस विचारधारा को बताना है। तो इसी समय साथियों काफी हो चुका है, तो मैं समझता हूँ आगे मौका मिलता रहेगा तो हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। मैं अब अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और प्रोफेसर आरसी धीमान जी को एक बार फिर से बहुत बहुत साधुभाव करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमें संविधान की जो व्याख्या है उसके बारे में बताते हैं और बड़ी ही पेशेंस से जो हमें वो इसका व्याख्या करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत साधुभाव करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम आज के कार्यक्रम के समापन माननीय मासा मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखिए सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी मेरे से कह रहे हैं? जी सर, आज का आवाज और उद्बोधन रख दीजिए। चलिए, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए माननीय आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमारे आज के अध्यक्षता जिन्होंने की प्रतिपाल एडवोकेट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं विशेष एक सूचना देना आपको चाहता हूं कि 27 सितंबर को जैसा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पहले से निर्णय है कि हमको जिलेवार राष्ट्रपति महोदय के नाम कुछ समस्याओं के माध्यम में ज्ञापन देना है, तो 27 सितंबर को मेरे संज्ञान में आया है कि किसान आंदोलन ने संपूर्ण भारत को बंद रखने का आह्वान किया है। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग परसों बुधवार को
सुबह हमारा बुद्ध और उनका धम्मों पे तो चर्चा होगी ही, साथ ही शाम को 9 बजे फिर हम सब लोग सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय सचिव, सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण अवश्य जुड़े और हम आपस में 9 तारीख को, 8 सितंबर को, 9 तारीख को आधे घंटे, केवल आधे घंटे, बड़ी बात नहीं करेंगे, उसमें कोई स्पीच वगैरह नहीं होगी, तो हमें इस विषय पे क्या निर्णय लेना चाहिए, हमारा क्या रोल रहना चाहिए 27 सितंबर के आंदोलन को लेकर, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने राज्य से संबंधित जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय महासचिव साथी, सभी राष्ट्रीय सचिव, सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य साथी अवश्य परसों के दिन 8 सितंबर को रात्रि 9 बजे इस वेबिनार में भाग लें। ये मुझे विशेष निवेदन करने के लिए मैंने आपसे समय लिया है। उन्हें आप सबका एक बार धन्यवाद, आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। पूरी कार्यकारिणी 9 बजे 8 तारीख को जुड़ेगी और हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। अब मैं सभी साथियों को माइक ओपन करने की परमिशन देता हूँ। सभ्य सत्ता विभाग का समापन करेंगे मंगल गाथा के साथ। सभी अपने माइक को ओपन करें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये भद्राणि सुखियों के दुख दूर आज के वेबिनार के समापन की विधि घोषणा की जाती है। उपस्थित सभी आदरणीय जनों को नमो बुद्धाय, जय भीम।